Good afternoon, everyone, and happy Teachers' Day at the outset of this public forum. And welcome to AOGD Public Forum on Adolescent Health Awareness. And we are very honored to have all guests with us, which I think will be done by our today's moderator, rest of the part. But I will introduce the today's moderator and champion of this event, I would say, Dr. Anita Sabharwal. And I think you all know her very well, that Dr. Anita Sabharwal. Am I audible? Yes, yes. Yes, yes. Yes, amazing chairperson for this public forum, and she has been the pillar of organizing all these different events. Recently, we have done with on breastfeeding, and every time she is organizing some or the other program on awareness and health, majorly of women and children, maternal and child health, and as part of it, today's adolescent health awareness program, public forum on this. And as you all know, that adolescent is a phase of rapid growth and development, during which there are a lot of changes, physical, psychological, behavioral, and physiological changes happen. And why do we need to create this awareness? There are 4-5 main reasons. Because number one is changes are taking place. Number two is 21% of the total population of India is constituted by adolescents, that is 10 to 19 years of age group. And we also know that the morbidity and mortality among this group, there are a lot of causes which are preventable. And we know that early unintended pregnancy, unsafe sex, nutritional anemia, overweight, abuse, alcohol, drug abuse, and all that, mental health concerns, and injuries, violence, all these can be prevented if we create the awareness among this group. And therefore we thought that there should be a program where we can provide comprehensive program where we will address the health issues or health awareness of adolescents. Therefore, the idea was generated, and Dr. Anita Sabharwal has been kind enough, with the help of AOGD and their executive members, with their guidance and mentorship, this program has been, public forum has been organized. And from here, as I'm also one of the panelists, I would request Dr. Anita Sabharwal to take us through the journey of today's discussion during this forum. So over to Dr. Anita. I wanted to display this slide before introducing you, but again, I would like to say that she has been into multiple hats and doing a lot of activities. She's secretary of Forum of Obstetricians and Gynecologists of South Delhi. She's coordinator, Adolescent Health Committee of AOGD 2006 and 8, chairperson of Adolescent Health Committee AOGD 2010 and 12, and was awarded gold medal by AOGD, an executive AOGD 2016 and 17, and at present chairperson Public Awareness Committee of ISCCP. So a lot of accolades to her credit. And not going into the details of all that, I would like to invite the vibrant, very bright and energetic doctor with us, Dr. Anita Sabharwal. Over to Dr. Anita. Dr. Manju, maybe Dr. Anita has left due to her internet connection. Yeah. No problem. I think we have all panelists with us. And can you just display that slide if you have the panelist, our banner or the flyer which we prepared? If you have that, if can be displayed, will be good. If not, it's okay. Dr. Achala, Dr. Pratima is here. Okay. Yeah.
Okay. Yeah. So I would request Dr. Achila to initiate this and say a few words before we start. Let's take blessings from Dr. Achila first. So Thank you may I very much, request? Manju. Yeah, thank you. You make me feel so old, blessing. No, it's adolescent. You are blessing all adolescents because today we are Okay, going to make them Thank aware you. of it. See, Yeah. I think this is a very, very good afternoon. I think this is a very, very important issue which we are going to cover today, because adolescents are the strength of a nation. They are the building blocks. They are the way they grow. That is how our nation is going to be built. And we have to take care of them, because that is the time when their body is changing, their minds are, changing. And it's our duty to give them good health, solve their problems. And they do have a lot of issues. So this whole week has been dedicated to adolescent health issues. And Dr. Anita Sabharwal, along with Dr. Manju, has taken up this task of making the can we hear? Yes. Yeah, Dr. Manju? Yes. Yes. Okay, I think today there's some issue with the No net. problem. Dr. Achila was there with us. Yeah. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Thank you, Dr. Achila and Dr. Manju, for starting with the great, I think, applaud. So it's a great day for all of us. Happy Teachers Day to all of you. And in Hindi, शिष्य है गुरु कुम्हार है गड़गड़ काढ़े खोट अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट together. And today is a very special day for us, and we are really celebrating in a very novel manner, because आज हम adolescents के साथ बातें करने वाले हैं, उनको पढ़ाने वाले हैं. So आज बहुत सारे teachers हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं from nursing college, from obstetricians and gynecologist colleges from all over Delhi. Also, we have our guest of honor with us, Dr. Girish Mane, who is actually the chairperson of the Adolescent Health Committee of FOXY, जो कि FOXY हमारी फेडरेशन पूरी इंडिया की obstetric और gynecology की societies की है. So I am very thankful that he has also joined us. We welcome him to Delhi today. And before we go on with his address, मैं फिर से टीचर्स के लिए कहना चाहूंगी, जो कि मेरे जितने भी एडोलेसेंट बच्चे भी हैं आज, वो सब भी अपने टीचर्स को कहेंगे, तो उनके बिहाफ पे भी मैं कहना चाहूंगी, गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन. और ये हमारे खास करके गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे टीचर हैं आज के सबसे बड़े, जो कि एडोलेसेंट हेल्थ के हैं, अभी यंग हैं पर एडोलेसेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनके लिए खास करके, और हम सभी टीचर्स के लिए जो बैठे हैं यहाँ पे, गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन, जिनके कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन. हाँ, गुरु आप ही पावन नूर हैं, जिनसे रोशन हुआ जमाना. सो बिना टीचर्स के कोई हम आगे नहीं बढ़ सकते. हम सभी ऐसे आगे आए हैं और आगे भी जाते जा रहे हैं. खास करके बहुत बड़ा संदेश है कि गुरु से जो अगर सही नॉलेज सीखेंगे तो आगे जाके उनको भी फायदा होगा, उनके परिवार को और उनके पूरे देश को. सो आज हमारे ये सारे टीचर उन सबको ज्ञान देने आए हैं. तो मैं डॉक्टर गिरीश माने, जो कि हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे साथ हैं कुछ समय के लिए, तो उनका कुछ हम प्रेशियस समय और चाहेंगे कि वो हमारे कार्य को शुरू करने से पहले अपने वचन बोल लें. तो मिस्टर शिवम, आप डॉक्टर गिरीश को देंगे स्लाइड, या एक बार थोड़ा उनका स्लाइड दे दीजिए इससे पहले कि वो बोले. या
डॉक्टर गिरीश किशोर वाले बच्चों के लिए, किशोरावस्था वाले बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया को उन्होंने इकट्ठा किया है और पूरा वीक हम इनके निर्देशन में मना रहे हैं। और 7 तारीख को भी बहुत बड़ा कार्य है जिसमें कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। सो मिस्टर शिवम, कैन वी हैव, am I frozen again? हाँ जी, क्या हुआ? अनम्यूट हो जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, अनम्यूट करना। Dr. Girish sir, today we are having some net problem, so I'll be very, very honored if you say a few words. Yes, madam. Yes, thank you very much for the very kind and generous introduction of mine. Thank you very much, and I really extend my sincere thanks and gratitude to all of you, Fatima madam, आप, मंजू मैडम, everyone. बहुत अच्छा लगा। और फतिमा मैडम के चरण स्पर्श तो हमारे गुरु स्थान ही है। और जो भी बच्चे आज इस कार्यक्रम को जिन्होंने ज्वाइन किया है, इन सब बच्चों को बहुत सारे आशीर्वाद। और हम अपेक्षा करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम आप लोगों के लिए स्पेशली हमने ऑर्गेनाइज किया है, मतलब अमिता मैडम ने और उनकी टीम ने, तो आप इसका उपयोग जो है अपने लाइफ के लिए करेंगे। बच्चों, आप सोच सकते हो कि आज संडे है, हर कोई चाहता है कि अपने फैमिली के साथ कुछ मिनट गुजारे, कुछ पल गुजारे। और टीवी वालों ने भी हमारे लिए बड़े बड़े इंतजाम करके रखे अच्छे अच्छे सीरियल्स और प्रोग्राम के। तो सब छोड़ के, जबकि हम 7 दिन बहुत काम करने के बाद आज का दिन हमारे लिए रिजर्व रहता है, वो छोड़ के हम आपके लिए यहाँ आए हैं, तो कुछ खास मकसद तो जरूर होगा। तो मकसद यही है कि हमारे बचपन में कुछ चीजें जो हमसे नहीं कही गई, लेकिन उस समय हमने निभा ली, और शायद आज हम एक जिंदगी के अच्छे पड़ाव पे है। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमसे भी और आगे 2 कदम निकले और अच्छे जीवन के अच्छे पड़ाव पे आ जाए। तो बच्चों, कुछ फैक्ट्स हैं जो आज के एडोलेसेंस से रिलेटेड है, जिसके बारे में हमें जो मैडम ने बताया कि ये उम्र में आज, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो अपनी जो पॉपुलेशन, एडोलेसेंट पॉपुलेशन वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। दूसरी तो आजकल कंपैरेटिव टू द लाइफ, आज की लाइफ को हम लाइफ अल्फा बोलते हैं। तो जो हमारी लाइफ एक्स थी और लाइफ जेड थी, मतलब कुछ समझ लीजिए 15 साल के पहले जिनकी जिनकी बर्थ हुई थी, इनके जीवन में और आज के जीवन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, और ये चैलेंज फेस करते करते कभी दिक्कतें आती है, और उन दिक्कतों का सामना करते करते हम हमारे दोस्तों से राय लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। तो बहुत बार तो बहुत अच्छी सलाह मिल जाती है, लेकिन कभी कभी हम थोड़े से रॉन्ग ट्रैक पे भी चले जाते हैं। तो इस समय में आपको बचाने के लिए या आपको अच्छी सलाह देने के लिए बस आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स ये सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद में अगर उनसे भी जो चीज नहीं हो सकती है, वो डॉक्टर आपके लाइफ में आपको बता सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो आप आपके पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हो, आपके टीचर से शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन एज ए डॉक्टर हम आपको जरूर इस सब प्रॉब्लम्स में से बचा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी दुविधा, कोई भी चिंता या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ में हो रहा हो, तो उसको अपने पास तक सीमित मत रखिए, किसी न किसी के साथ में शेयर करिए। क्योंकि आने वाले समय में बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, फॉर एग्जांपल द मीडिया, द इलेक्ट्रॉनिक, द डिजिटल मीडिया, द डिजिटल वर्ल्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, देन द फिजिकल नीड्स, तो एक्स्ट्रा है जो लाइफ में सही में जरूरी है कि ये बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से अभी हर बच्चे की तरफ से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, उसमें डिप्रेशन आना, फ्रस्ट्रेशन आना बहुत स्वाभाविक बात है। अगर आज हम बातें तो कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन अगर हमने ये इरा में अगर हमने जन्म लिया होता, तो शायद हम भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे होते। तीसरी चीज है कि हम जब छोटे थे तो घर में इतने ज्यादा सदस्य थे कि हम हमारी प्रॉब्लम शेयर किसी के साथ में भी कर सकते थे। हमारे कजिन हमारे चाचा के साथ में रहते थे, हमारे दादा दादी साथ में रहते थे। तो घर में आने के बाद में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम कभी घर में अकेले हों। लेकिन आज आपकी मम्मी भी काम करती है, आपके पापा भी काम करते हैं, आपका भाई होगा तो भाई के फ्रेंड सर्कल अलग है, दीदी होगी तो दीदी का फ्रेंड सर्कल अलग है। तो घर में आने के बाद में आपका बेडरूम, आप और आपका मोबाइल या आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इतना ही आपके साथ में है। इससे कभी अच्छी भी बातें पता चलती है, कभी गलत भी बातें पता चलती है। तो बस यही कहना चाहूंगा और रुकना चाहूंगा कि मन में कुछ भी मत रखिए, जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है, और एडोलेसेंस जो लाइफ है वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन पड़ाव है, सबसे बेहतरीन। लेकिन एक ही गलत बात होती है कि ये पड़ाव जाने के बाद समझ में आता है कि दैट वाज द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ।
तो हमने आज हम यही कहने में व्यस्त है कि हमारा जो बचपना था वो सबसे ब्यूटीफुल फेज था, लेकिन इस समय शायद हम उतना नहीं उसको एंजॉय कर पाए। बस यही विनती आप सबसे है कि आप इस बात को महसूस करिए और जिंदगी का जो सबसे बेहतरीन पड़ाव है उसको और अच्छा करिए। आप ऐसा काम कभी मत करिए जो शेयर करने में आपके माता पिता के साथ में आपको डर लगे या शर्म आए। और आप मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा मत कुछ कर दीजिएगा कि उनको बस लगे कि काश ये मेरा बेटा या मेरी बेटी ना हो। Thank you so much and happy learning to all of you, and I'm looking forward for a great program ahead. Thank you, madam. Thank you. Thanks for inviting me. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरीश मानी। एक तो सबसे पहले आपने इतना समय निकाला, इतना बिजी होने के बावजूद पूरे देश का कार्य आज आपके ऊपर है एडोलेसेंट हेल्थ की अवेयरनेस का, तो स्टिल यू मेड इट फॉर अस, सो वी आर रियली रियली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड। और मेरे ख्याल में हमारे सारे बच्चे भी बहुत खुश होंगे, और जितने भी हमारे इतने बड़ी फैकल्टी आज इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, दे ऑल मस्ट बी फीलिंग वेरी nice and we all are very happy. Thank you so much, sir, and we will try to follow all the steps you have given us so that we can do good for the adolescents. Ma'am, please Thank you, sir. share Thank the you so link much. of 7th program with And everyone. yes, so okay. Yeah. Yes, thank you so much. So because आज क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम एडोलेसेंट्स की बहुत सारे ऐसी बातों के बारे में है जो कि कई बातें वो जानना चाहते हैं, जिनके बारे में उनको संकोच है या जिनके बारे में कुछ डाउट्स हैं, कुछ मिथ्स हैं, तो उन सबको क्लियर करने के लिए आज हम सारे इधर इकट्ठे हुए हैं। और मेरे साथ आज बहुत ही सीनियर टीचर्स इन्होंने आगे कितने टीचर्स बना दिए, कितने डॉक्टर्स बना दिए। कॉम्बिनेशन है कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर यू कैन सी द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। हम इसीलिए इकट्ठे हैं ताकि हम अच्छे से अपने बच्चों के विकास के बारे में जान सकें। और चाहूंगी कि जो हमारे बहुत बड़े पैनलिस्ट हैं, एक हमारी प्रेसिडेंट जो है AOGD डॉक्टर अचला बत्रा हमारे साथ हैं, पैनलिस्ट जो आप सबको आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आई हैं। वो सफदरजंग में प्रोफेसर हैं, यूनिट हेड हैं, और हमारी बहुत सारी सोसाइटीज की आगे भी हेड सेक्रेटरीज बहुत सारे पद ले चुकी हैं और बहुत सारी किताबें लिखती हैं और बहुत अच्छी टीचर हैं। और हमारी उनसे भी सीनियर डॉक्टर प्रतिमा मित्तल हैं, जो कि एडोलेसेंट हेल्थ उनकी पैशन है, और उसके इतनी बड़ी विशेषज्ञ होने के बावजूद, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कितने ही सालों से बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है उनका, और उसके बावजूद वो एडोलेसेंट हेल्थ में उनका बहुत बहुत पैशन है, जो कि मैं उनको कई सालों से देख रही हूँ। तो आपके बहुत सारे डाउट्स आज वो क्लियर कर देंगी, आई एम श्योर हैं, जो कि हमारा जो यहाँ हमदर्द जामिया है, नर्सिंग कॉलेज, वहाँ की वो डीन है, और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत ज्ञानी हैं, एंड वो ज्ञान के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स कर चुकी हूँ। सो वेरी मैग्नेटाइज्ड पर्सनालिटी शी इज। एंड हमारे स्पेशलिस्ट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, और बहुत जबरदस्त इनको भी एक्सपीरियंस है, और ये भी एडोलेसेंट हेल्थ में बहुत रुचि रखती हैं, और आपके बहुत सारे प्रश्नों के क्वेरीज के देंगी। और हमारे साथ नर्सिंग कॉलेज से ही, रुबैदा नर्सिंग कॉलेज से ही, हमदर्द जामिया से मिस रेनू हैं। Hello. Yeah, can you hear me, Dr. Manju?
Yes. Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Yes, ma'am. Sorry because of the net Yes, ma'am. problem. Yes, yes, तो yes. आज आई थिंक इन बिटवीन नेट जाएगा तो मेरे सारे सीनियर टीचर्स ही हैं तो ये सब इसको संभाल लेंगे. तो अभी बिकॉज इन बिटवीन नेट इज गोइंग इन बिटवीन so I will now, और हमारे साथ हैं I think yeah, am I clear now? Yes, you are clear, but तुम 2 से करोगे ना तो वो हाँ. मैडम अगर वीडियो बंद रखते हैं तो साउंड बहुत अच्छे से क्लियर आता है because video consumes the maximum this net. Yes. अब हमारे साथ मिस सोमी भी हैं जो कि अगेन वही नर्सिंग कॉलेज से हैं and both of them all of them are really doing full job. I will request all of them to be here on the dais ताकि हम अपने जो भी हमारे किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनकी बातों का आंसर दे सके. और डॉक्टर प्रतिमा मित्तल के पास क्योंकि जितनी भी हमारी ये युवा वर्ग की किशोरियां हैं उनको बहुत संकोच रहता है कि किससे बात करें. तो कभी फ्रेंड से बात कर लेंगी या कभी अपनी किसी भी रिश्तेदार से बात लेंगी जो भी उनको लगेगा इससे हम बात कर सकते हैं पीरियड के बारे में. तो ये पीरियड्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी बच्चियों की. कई बार तो ये नॉर्मल होती है कि कुछ टाइम में होता है फिर ठीक भी हो जाता है बट वो बहुत ज्यादा डर जाती है. मैं डॉक्टर प्रतिमा मित्तल मैम जानना चाहूंगी एडोलेसेंस में जब पीरियड्स कब स्टार्ट होते हैं क्योंकि किसी लड़की को हो गए किसी हो जाएगा अगर हो गया तो नहीं हुआ तो थैंक यू अनीता, आपने बहुत ही अच्छा तो क्वेश्चन. मैम आप इसके बारे में थोड़ा उनके पीरियड के बारे में डिटेल्स बताएं. हाँ अनीता, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी अपने सब किशोरियों को और किशोरियों के अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो उनको भी बताना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले नॉर्मल पता होना चाहिए. हम लोगों की जो ज्यादातर इश्यूज जो आते हैं लड़कियों को जितने भी पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि नॉर्मल क्या है. अगर नॉर्मल पता होगा तो उसको एबनॉर्मल वो है कि नहीं है वो उसमें जानकारी कर पाएंगी क्योंकि छोटी मोटी 2-2 3-3 दिन की अगर वेरिएशन होती है उसको भी वो एबनॉर्मल मान लेती हैं. तो सबसे पहले तो हम शुरुआत की बात करते हैं कि कब पीरियड शुरू होने चाहिए. तो हमारे जैसे जो हमारे देश में देखा गया है कि 12 वर्ष जो है एवरेज एज हमारी लड़कियों की मिनार्की की है. पीरियड सबसे पहला पीरियड होने की है. पर ये अगर ये 8 वर्ष से पहले शुरू हो जाए तब हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं. पर अगर 8 वर्ष के बाद शुरू हुए तो उसको नॉर्मल मानते हैं. और उसके सिमिलरली अगर 16 साल तक पीरियड नहीं हुए हैं, शुरू ही नहीं हुए 16 साल तक, तब हमें उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो बिटवीन 8 to 16 ईयर्स हम सब ये मानते हैं कि पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मली बच्चों को शुरू हो जाने चाहिए. अगर बच्चों के सेक्सुअल ऑर्गन्स या जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ है तो उन केसेस में हमें 14 साल की उम्र में ही उनकी जांच करानी चाहिए. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि आपकी बच्ची को इस बीच में पीरियड शुरू हो गए कि नहीं हो गए. अगर 8 साल से पहले शुरू हुए तो एकदम बात करें, डॉक्टर के पास जाएं. पर अगर 8 साल के बाद, आजकल थोड़ा जल्दी हो रहा है, मैंने देखा बहुत लड़कियों को जल्दी मैच्योरिटी हो रही है तो 10-11 साल में भी पीरियड शुरू हो रहे हैं, तो उसको कोई एबनॉर्मल नहीं मानना है. बट इसमें एक चीज हमें देखना है कि एक पैटर्न फॉलो होता है. लड़कियों की ग्रोथ में एक पैटर्न फॉलो होता है. लड़कियां जो है एकदम से लंबाई गेन करती हैं और उसके बाद उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है. और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बाद उनका जो है हेयर्स आते हैं अपने उनके प्राइवेट पार्ट्स पे और उनके बगलों में बाल, ये सब आने लगते हैं. और बालों की क्वालिटी भी मतलब चेंज हो जाती है. पहले थोड़े सॉफ्ट होते हैं, बाद में थोड़े हार्ड हो जाते हैं. इन प्राइवेट प्लेसेस पे बाल या एक्सिलरी हेयर्स जिनको हम बोलते हैं, उन सब जगह पे. पर और उसके बाद पीरियड आता है. तो ये एक सीक्वेंस चलता रहता है. तो जब आप देखें कि लड़की ने हाइट गेन करी है और जब देखें कि लड़की ने कि ब्रेस्ट थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है, ब्रेस्ट थोड़ी उभरने लगी है, तो उसके हम जनरली ये कहते हैं कि ब्रेस्ट डेवलप होने के 2 साल के अंदर अंदर जनरली लड़कियों को पीरियड शुरू हो जाता है. तो दैट इज ए साइन, यू नो. तो ये 2 साल को हमें एज ए मदर, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर
हमें इस 2 साल को यूटिलाइज करना है उन लड़कियों को सिखाने के लिए कि ये पीरियड कैसे होते हैं। एक सर्वे किया गया था, उसमें देखा गया कि 60% लड़कियों को पता ही नहीं था कि पीरियड्स होते हैं जब, और उनको पहला पीरियड हो गया तो वो एकदम से अनजान और एकदम से एक शॉक की तरह से उनके ऊपर आता है, तो वो बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हर एक लड़की को मेंटली तैयार करना है हमें कि भाई पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल चीज है, इट इज नॉट एबनॉर्मल। और ये आपको अब जब आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई, ग्रोथ हो गई है, तो आपको 1 या 2 साल में पीरियड शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि हमें कब पीरियड शुरू हुए और कब एबनॉर्मल हुए। दूसरे, अब आपके जो शुरू के 2-3 साल हैं उसमें पीरियड्स जो हैं वो, क्योंकि पीरियड्स जो आप देखो तो एक हमारी साइकिल चलती है कि हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजता है हमारी ग्रंथियों को, जो कि हार्मोन्स रिलीज करती हैं, और उन हार्मोन्स के बाद हमारे अंडे जो हैं वो, अंडेदानी जो है वो एक्शन करती है, एक अंडा बनने लगता है, और वो अंडा बन के जब रिलीज होता है और उसके बाद वो अगर उसको फर्टिलाइज नहीं होता तो हमें पीरियड होते हैं। ये एक साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा ये होता है कि शुरुआत में ब्रेन सिग्नल भेजेगा तो वो हार्मोन्स बनेंगे, हार्मोन्स ओवरी पे एक्ट करेंगे, अंडा निकलेगा, अंडा अगर नहीं फर्टिलाइज होगा तो वो उसमें आपको पीरियड हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। पर जब तक अंडा, जब बच्चियों लड़कियों को शुरू होती है महावारी, किशोरियों को जब शुरू होती है महावारी, तो शुरू के 2 से 3 साल तक अनियमितता हो सकती है, क्योंकि हर लड़की में उस टाइम तक अंडा जो है निकलना शुरू नहीं होता रेगुलर तौर पे। तो रेगुलर तौर पे अगर महीना शुरू होने के बाद 3 साल तक भी पीरियड रेगुलर ना हो तो हमें चिंता की बात है। पर जनरली 3 से 3.5 साल तक अधिकतर 99% लड़कियों में पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। तो अगर पहले 2-3 साल अगर पीरियड थोड़े इरेगुलर है तो उसके मामले में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो एक ये विशेष साइकिल की तरह से, चिंता करेंगी तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल होगा तो ब्रेन से सिग्नल ठीक नहीं जाएंगे, सिग्नल ठीक नहीं जाएंगे अंडेदानी पे तो फिर पीरियड्स, अंडेदानी पर बच्चेदानी पे तो पीरियड्स नहीं होंगे। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर दूसरा है कि नॉर्मल पीरियड्स कितने होने चाहिए, जो ये बात हम करेंगे। तो नॉर्मल पीरियड्स की जो हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, हम 4 चीजें इसमें देखते हैं कि कितनी देर में, दिनों में, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने दिनों में आते हैं। जैसे 28 से 34, हम जो नॉर्मल साइकिल लेते हैं 24 से 38 डेज का इंटरवल, 24 दिन से 38 दिन का इंटरवल जो है 2 पीरियड्स के बीच में नॉर्मल माना जाता है ना। किसी में 28 दिन का हो सकता है। जिस तरह से हर एक स्त्री की, हर एक लड़की की अपनी पहचान होती है, इसी तरह से उनके पीरियड भी अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी के 28 दिन में हो जाएंगे, किसी के 38 दिन में होंगे, तो वो हम नॉर्मल लेते हैं। अगर लेकिन इसके बियॉन्ड जाए, 24 दिन से कम में हो रहे हैं या 38 दिन से ज्यादा में हो रहे हैं बार बार, तो हमें थोड़ी चिंता करनी चाहिए है। दूसरी बात होती है कितने दिन रहता है ना। उसके लिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम 8 दिन तक किशोरियों में अगर पीरियड रहता है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। ज्यादातर लड़कियों में 4 से 5 दिन तक ये पीरियड रहता है, पर अगर 8 दिन से ज्यादा जाए हर बार तो उसमें हमें थोड़ी सी चिंता करनी है कि भाई ये जो है ये एबनॉर्मल है। तीसरी चीज होती है कि आपकी रेगुलरिटी है कि नहीं है। रेगुलर पीरियड्स का मतलब है कि पीरियड जो है हर बार 28 दिन या 30 दिन पे आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर बार 28 पे आएंगे या हर बार 30 पे ही आएंगे। उसमें अगर एक हफ्ते का वेरिएशन है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं कि अगर एक बार 28 दिन में हुआ, दूसरी बार 35 दिन में हुआ, तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि ऐसा अभी हमने बताया कि बहुत ज्यादा दिमाग पे, हाइपोथैलेमस पे आपका अफेक्ट की वजह से ये पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से, खाने की वजह से। तो ये सब चीजें देखनी है। और चौथा जो है कि कितना फ्लो जा रहा है, कितने आपको ब्लीडिंग कितनी हो रही है। तो यूजुअली हमने देखा है कि 2 से 3 पैड्स जो हैं एक किशोरी जनरली यूज करती है, जो कि नॉर्मल होते हैं। पूरे पीरियड की अगर हम ड्यूरेशन में देखें तो हम अराउंड 30 ml का ब्लड लॉस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, 30 ml का ब्लड लॉस होता है। पर अगर 80 ml से ज्यादा हो जाए तो हम उसको चिंता मानते हैं। पर अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली ना कह के अगर हम उसकी तरह से बताएं कि पैड्स की तरह से बताएं, तो अगर दिन में 7 से ज्यादा पैड यूज करते हैं तो वो ज्यादा पूरे, या आपको 1 घंटे में इतना ब्लीडिंग हो गई कि एक गश की तरह से 1 घंटे में पूरा पैड भर गया, तो उसको चिंता करने की बात है। और चौथी जो चीज इसमें हम इम्पोर्टेंट मानते हैं कि अगर बच्ची का हीमोग्लोबिन गिर रहा है, अगर बच्ची कह रही है कि भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और हम देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन गिर रहा है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है।
तो ये सब 4 चीजें मैंने बताई मेंस्ट्रुएशन के बारे में कि भाई कब शुरू होना है, कब उनको तैयार करना है और किस तरह से नॉर्मल रखना है और कब हमें चिंता करनी है कि ये अब है। ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 90% लड़कियां हमारे पास इसलिए आती हैं कि मेरा पीरियड अब 35 दिनों में भी नहीं आया, तो वो चीज देखनी है। थैंक यू डॉक्टर प्रतिमा। अनीता, और कुछ आप चाहेंगी हाँ, मुझसे बिल्कुल, कहना? थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया। और क्योंकि हम लोग भी पहले सोचते थे कि 21 से 35 दिन का साइकिल, और अब आपने जो बताया 24 से 38 दिन का एक साइकिल जो नॉर्मल है, और ये रेंज है, तो हर कोई की रेंज होती है, जैसे हर चीज में रेंज होती है। तो ये बहुत अच्छा आपने समझा दिया कि उस लड़की का जिसका 24 दिन में आ रहा है या जिसका 38 दिन में आ रहा है, तो उनको घबराना नहीं है आपस में डिस्कस करके कि तेरा 24 है तो गलत, तेरा 38 है तो गलत। तो दोनों ही ठीक हैं, तो अपनी अपनी जगह में। हाँ, उससे अलावा कुछ होगा और कुछ ज्यादा परेशानी, तो फिर हम, आप जैसे डॉक्टर हैं जो कि हमेशा ही सेवा करते हैं इन सबकी, तो उनको गलत जगह ना जाके सही डॉक्टर के पास, सही अपनी सिस्टर के पास जाके अपनी उनसे प्रॉपर ज्ञान लेना है, ना कि अपने इधर उधर जिसको छोटी मोटी नॉलेज है आपस में तो गलत हो जाए, ऐसा नहीं करना। तो बहुत ही आपने अच्छे से बताया कि उनको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, 3 साल तक भी पीरियड इरेगुलर है तो परेशानी नहीं। पर जैसे कि आपने बताया कि 2 से 3 पैड भी भीगे तो नॉर्मल है, बट अभी हम आगे चल के उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी डिटेल्स में बताएंगे कि फिर भी दिन में उनको कम से कम 4 बार पैड जरूर बदलने चाहिए। अगर वो पूरी तरह से ना भी भीगे, कम भी भीगे हों, तो ताकि उनके अंदर, तो इसके लिए भी इन लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए। और आना शर्म की बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी, जैसे लोग अब आज माँ का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, और माँ जिसको सारी दुनिया मानती है, माँ के दर्जे के आगे तो किसी का है ही नहीं, ऐसा पवित्र रिश्ता है। तो पीरियड आना भी एक बहुत पवित्रता की बात है। तो पीरियड आना छुपाने की बात नहीं है, ये बल्कि बताने की बात है कि हमें पीरियड आता है। और इसके बारे में डॉक्टर प्रतिमा, मैं जानना चाहूंगी कि लड़कों को भी मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उनसे हमें छुपा के रखना चाहिए कि लड़कियों को पीरियड आता है, और जब पीरियड आए तो उनको पता नहीं होना चाहिए कि ये एक बहुत गलत बात है, उनको पता ना चल जाए। ऐसा कुछ है? क्योंकि हम जब छोटे थे हमें ऐसे ही लगता था। इससे अनीता, मुझे बोलना है क्या? डॉक्टर प्रतिमा से मैं जानना चाहूंगी। हाँ, आपसे पूछना चाहूंगी कि लड़कों को बिल्कुल 100% लड़कों को जानना चाहिए, लड़कों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल 100% मैं ये कहूंगी कि लड़कों को पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, लड़के ही बाद में जाके, उम्र में जाके लड़के ही पिता बनेंगे, है ना? तो उनको इन सब के चीजों के बारे में अगर मालूम नहीं होगा तो वो भी उनका यूटिलाइजेशन जो है, मतलब लड़कियों को वो गलत तरीके से भी नहीं देखेंगे। एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि भी उनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जिससे कि जो भी कोई परेशानी वाली बात हो बच्चों में बाद में कि अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी या उस तरह की चीजें ना करें। दूसरा जो है कि छेड़ाछाड़ी जो करते हैं, अगर उनको पता है कि भाई ये नॉर्मल चीज है, तो जैसे अगर किसी लड़की के शरीर में कभी धब्बा लग गया खून का, तो वो उस तरह की चीजों को उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, उनको इधर उधर छेड़ाछाड़ी करते हैं, बड़ी लड़कियों को बड़ा हैरस करते हैं। आई थिंक दैट कैन बी कैन बी टेकन केयर ऑफ, उसको उससे बचाव हो सकता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी जो हम एडवोकेट नहीं करते हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि लड़कों को पता हो कि कैसे पीरियड होते हैं, कैसे बच्चा ठहरता है, और क्या क्या जो हम अपने रिलेशनशिप जो हम करते हैं, अगर हम रिलेशनशिप करेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, और वो हमारी पार्टनर के लिए भी कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि लड़कों को इन नॉर्मल पीरियड्स के बारे में, और कैसे प्रेगनेंसी ठहरती है, कैसे इनसे इन अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी से इन्फेक्शन हो सकता है, वो सब चीजें लड़कों को पता होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर प्रतिमा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। मैंने अभी पढ़ रही थी कि एनसीईआरटी की जो 12th की बुक्स हैं, उसमें जो बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें भी पूरा उन्होंने डिटेल में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में ज्ञान दिया हुआ है।
सब कुछ, इवन सारी कॉन्ट्रासेप्शन, इवन इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, एमटीपी, इन सब चीजों के बारे में इनको पढ़ाया जाता है, पर प्रैक्टिकली शायद कई बार उनको ये समझ नहीं आता। तो इसीलिए हम आज बैठे हैं कि जो भी इनकी समस्याएं हैं हम इनका निवारण कर सकें। तो ये एक जो पीरियड आना एक तरह की बहुत ही, मैं बोलूंगी, पायस बात है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण का जो बेसिस है वो भी ये पीरियड आना ही है। जिनको अगर पीरियड ही नहीं आएगा तो वो आगे रिप्रोडक्टिव जो उनका साइकिल होगा वो ठीक से नहीं चलेगा, अंडे ही नहीं विकसित होंगे, जिससे कि आगे बच्चा ही नहीं बन पाएगा, भ्रूण ही नहीं बन पाएगा। तो ये आना तो बहुत अच्छी बात है और इसका नजरिया एक अच्छे रूप में लेना चाहिए, ताकि जैसे आपने बोला कि बॉयज को या और को इसको गलत तरीके से नहीं लेना। तो अब मेरे तो आपने अभी ये भी बोला कि डाइट भी बहुत जरूरी है सही से पीरियड आने के लिए, और उनको हो तो उसके चलते हुए मैं डॉक्टर सुजाता है, ये किशोर अवस्था के लोग हैं, इनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, इनका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, ताकि कई बार बहक जाते, क्योंकि इनको पूरा ज्ञान नहीं होता, इनको लेना चाहिए, भी कर एंजॉय भी करें और अच्छा खाना भी खा पाए। Dr. Sujata. Thank you very much, ma'am. First of all, I would like to thank all of you to invite us here on this platform, and happy Teachers Day to all of you. So, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि इन एडोलेसेंट्स की जो इन बच्चों की जो है वो डाइट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि जो डाइट है उसके बारे में हमें इन एडोलेसेंट्स को, इन किशोरियों को समझाना बहुत जरूरी होता है कि क्या रीजन है कि हमें जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो एडिक्वेट होनी चाहिए विद कैलोरीज, कैल्शियम के साथ, आयरन के साथ एंड प्रोटीन्स के साथ। सो अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, जो हम 10 to 19 इयर्स की एज मानते हैं, उसमें जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो बिहेवियरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और इसके चलते हमारी डाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो आजकल हम मानते हैं, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो कहती है कि 2000 से 2500 कैलोरीज जो है पर डे का इंटेक होना चाहिए, 500 ग्राम 500 मिलीग्राम्स का कैल्शियम का इंटेक होना चाहिए, 40 मिलीग्राम्स आयरन का इंटेक होना चाहिए पर डे, एंड प्रोटीन्स का जो इंटेक है 60 to 70 ग्राम्स के आसपास होना चाहिए फॉर एन एडोलेसेंट। सो न सिर्फ ये एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमें ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना और बताना कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन अगर नहीं होगा एडोलेसेंट्स में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जो प्रॉब्लम्स होंगी फिर आगे उसका जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है लेटर इन देयर लाइव्स, वो क्या हो सकता है। सो एज फार एज द फिजिकल ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है, जो 70% जो ग्रोथ है, जो बॉडी ग्रोथ है, which is actually seen in this adolescent age group, 20% of weight जो है, which is very important, जो 20% weight है वो adolescent age group में ही देखा जाता है। जो skeletal muscle mass है, जिसकी जो बढ़त होती है वो भी लगभग 50% इसी एज ग्रुप में देखी जाती है। तो जैसा कि हमने कहा कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इस एज ग्रुप में काफी सिग्निफिकेंट है, काफी तेजी से होता है, जो देखा जाता है। इसके लिए जो उनका डाइट है और जो न्यूट्रिशन है एंड जो प्रोटीन इंटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए। सो जो हम कहते हैं एडोलेसेंट्स को, जो हम आम भाषा में समझाते हैं कि जो हमारा 60 to 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, 20% के अप्रोक्सीमेटली हमारा प्रोटीन इंटेक है, 10 to 15% हमारा फैट इंटेक है। अगर वो इस चीज को इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझाना कि हमें जो है रेनबो कलर्स के जो खाना है, जो जिस तरह का होता है उसे लेना चाहिए। 7 कलर्स इंक्लूड होने चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 कलर्स, विच मीन्स ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन, विच मीन्स फ्रूट इंटेक, वेजिटेबल इंटेक, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एक आसान भाषा में हम उन्हें इस तरह से समझा सकते हैं कि हमारी जो डाइट है वो इस तरह से होनी चाहिए, हमारी डाइट जो है वो इस तरह से हो कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इस एडोलेसेंट एज ग्रुप में वो इफेक्ट ना हो। और इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो अच्छी हैबिट्स है खाने की, जो डेवलप हो जाती हैं इस एज ग्रुप में, वो बहुत लंबे टाइम तक देखी जाती हैं।
आगे भी अपने यंग एज में, यंग पॉपुलेशन या एडल्ट लाइफ में उस चीज को वो फॉलो करते हैं। सो जो अच्छी हैबिट्स का डेवलपमेंट है वो इसी एज ग्रुप में होना चाहिए। दिस इज वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो उनका जो फूड इंटेक है, जो न्यूट्रिशियस डाइट से ज्यादा जो ट्रांजिशन होता है वो फैट फास्ट फूड, आई मस्ट से जो फैट फूड है, जो फास्ट फूड है, वो बिल्कुल सेम होता है फैट फूड के अकॉर्डिंग। अगर हम उसमें से एस हटा दें तो इट इज एक्चुअली फैट फूड। सो जो क्रेविंग्स हैं, जो हमारी क्रेविंग्स हैं, जो एडोलेसेंट्स की पिज्जाज के लिए, बर्गर्स के लिए, वो बहुत ज्यादा हैं। वी आर नॉट सेइंग कि उन्हें आप ना ले, यस दे हैव टू फॉलो फ्यू थिंग्स, कुछ रूल्स बना लें अपने लिए कि हम 15 दिन में एक बार ले सकते हैं, एक मंथ में एक बार ले सकते हैं। बट अगर हम उसको बहुत ज्यादा लेते हैं तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इंक्रीज करते जाएंगे लेटर इन देयर लाइफ्स, लाइक एक्सेसिव वेट गेन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सुजाता। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि हमें भी जो एनर्जी है वो भी प्रॉपर आनी चाहिए, और उसके साथ हमारा बैलेंस, और साथ ही विटामिन और मिनरल्स जो कि बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने सतरंगी डाइट बताई कि हर तरह की रंगों की सब्जियां, फल खाने चाहिए, और दूध दही का सेवन करना चाहिए। जिसको दूध नहीं पसंद तो वो मट्ठा ले सकता है, लस्सी ले सकता है, छाछ ले सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और सनशाइन भी बहुत जरूरी है, इसलिए धूप भी लेनी जरूरी है। तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत है। दूध चीजें अच्छे से ले लेंगे जिसमें कि कैल्शियम है, तो हम आपका बैंक बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये बैंक 30 साल की उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते। तो अभी ही आप अगर जागरूक हो जाएंगे तो आपका बहुत बढ़िया हड्डियों का ढांचा तैयार होकर रहेगा, जो आगे जाके आपको बहुत लाभ देने वाला है। तो इसलिए डाइट अच्छी लेनी बहुत जरूरी है। फूड फैट को अवॉइड करें। जितनी भी मीठी चीजें हैं, पेस्ट्रियां हैं, केक हैं, ये सिर्फ बर्थडे तक लिमिट रखो, तभी बस पार्टी मनाओ। हर रोज के सेवन में इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और फ्रेंच फ्राइज भी हम कभी कभी, आप लोग जब हमारे साथ टीचर्स डे मनाओ तो कभी कभी थोड़ी खा लिया करो। सो थैंक यू सो मच। पर इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, कि जिंदगी में बैलेंस बनाना तो बहुत जरूरी है। तो आप बच्चों बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज जानते हो, कर सकते हो। रोज डांस करो, जुम्बा करो, एक्सरसाइज करो। आपको घर में ही कर सकते हो बहुत सारी एक्सरसाइज, चाहे कैसी भी हो। आधा घंटा जॉगिंग करो, योगा करो। तो डेली आपको एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है। और अगर खाना और बढ़ा दोगे कैलोरीज, तो एक्सरसाइज भी और बढ़ा दो, तो बैलेंस बना रहेगा लाइफ में। तो आपको भी मजे आएंगे और आपकी पूरी फैमिली भी खुश रहेगी। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने डाइट की बात की और लड़कियों के पीरियड्स की भी बात कर ली। तो मैं अब डॉक्टर मंजू से जानना चाहूंगी कि क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमारे यूथ को उनकी पॉजिटिव डेवलपमेंट कराती हैं। सो द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू प्रमोट पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। सो मैं डॉक्टर मंजू से जानना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। और मैं कहूँगी कि ये जो मैं जवाब जिस देने वाली हूँ वो खाली यूथ के लिए ही नहीं है। वो चीज़ कोई भी फॉलो करे तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी होगी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए होगी। तो जैसे कि यूथ के लिए स्पेसिफिकली है, क्योंकि उनका बहुत सारे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए उनको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसलिए हम देखते हैं कि किस माहौल में वो रह रहे हैं। उनको कोई ऐसा तो नहीं है जहाँ पे वो पढ़ने जा रहे हैं, या फिर जब वर्क स्टार्ट करते थे, कई लोग 17 साल में ही काम भी शुरू कुछ किया, तो उस जगह पे कोई बुली तो नहीं कर रहा है उनको, और उनको जो प्राइवेसी या डिग्निटी जो उनको मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जहां वो है वो क्लीन स्पेस हो, और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो वो आम शेयर नहीं करना चाहते सब लोगों से। जैसे कि घर में आप बहन भाई ले लीजिए, हम अगर बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये आपका मैटर नहीं है, ये आपके साथ शेयर करना नहीं है हमको। तो वो एडोलेसेंट जो
आपस में शेयर कर रहे हैं और जिससे उनको साइकोलॉजिकल सेफ्टी लगती है कि मैं अपने फेलो के साथ शेयर करूं, और वो इवन अपने माँ बाप या किसी बड़े के साथ शेयर नहीं करने चाहते हैं। तो अगर उनको ऐसा माहौल हम दे पाए तो वो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप होता है, स्ट्रैटेजी होती है। इसके अलावा सपोर्टिव रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्टर मानी ने पहले बताया, मैं वही सोच रही थी कि डॉक्टर मानी ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकिन बहुत सारे इश्यूज को टच कर दिया था उन्होंने उधर। उन्होंने बताया कि जो ये सपोर्टिव रिलेशनशिप हमारे होते थे, जैसे दादा दादी घर में होते थे, तो वो एक तो क्लोजली उनको ऑब्जर्व कर पाते थे, कोई भी चेंज है उनके बिहेवियर में, या वो दिख रहे कि उदास बैठ गए या कुछ चीज का कंसर्न है जो शेयर नहीं कर पा रहे, तो वो आइडेंटिफाई करते थे और दे वर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ सपोर्ट इन दोज रिलेशनशिप्स, जो आजकल थोड़ा सा कम हो गया है। हालांकि मैं आज टीचर्स डे पे ये भी कहूंगी कि टीचर भी एक बहुत बड़ा सपोर्टिव रिलेशनशिप है। एज अ टीचर आई विल टेल यू कि जब भी मेरे किसी भी बच्चे को कोई भी कंसर्न हुआ, इवन उसकी आईज, आजकल तो मास्क लगा है तो पूरा मुंह दिख नहीं रहा है उनका एक्सप्रेशन पूरा, बट फ्रॉम आईज ऑल्सो वी कैन मेक आउट दैट they need some supportive relationship and I can be of help to them. And इसके अलावा उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिल पाना या मुहैया कराना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको बिलोंगिंगनेस और उनकी जो एफिकेसी है, उनकी जो पोटेंशियल है, उसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाए। ये बहुत एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी है। सो इसके लिए यही कर, हम लोगों के टाइम में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जिसमें हम अपना शोकेस कर सके अपनी पोटेंशियल्स को। सो मैं हर एडोलेसेंट को यही रिक्वेस्ट और एडवाइस करना चाहती हूँ आज के दिन कि वो लोग अपने इसको उसको इस्तेमाल करने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि एनर्जी भरपूर है। जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी है कि उसको एक सीमित कर पाना मुश्किल होता है। तो वो डायरेक्शन राइट हो, तो जब राइट डायरेक्शन होगा तो डेस्टिनेशन भी अच्छा हो जाएगा, तो वो एक अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। और पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में वो बताया जा रहा था कि इतने डेज नॉर्मल है, इतने दिन बाद आना नॉर्मल है। ऐसे जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, पॉजिटिव नॉर्म्स होने से वो भी जिस ग्रुप में है वो नॉर्म बनाते हैं ना कि हम हफ्ते में एक दिन फिंगर चिप्स खा सकते हैं, ऐसा वो ग्रुप जो होता है उनके भी अपने नॉर्म बनते हैं ना। सो दे शुड आर हैविंग दोज पॉजिटिव नॉर्म्स and they are into those positive things, and when you are along with the positive people, positive norms, positive vibes, you ought to have positivity in yourself also. And इसके लिए जो apprenticeship होती है, for example building skills, skill building apprenticeship programs होते हैं, वो भी अगर वो ज्वाइन करेंगे तो अच्छा होगा उनकी बाकी डेवलपमेंट के लिए। तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए दे शुड यूटिलाइज द वेरियस अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप द स्किल्स, दैट इज स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। और फाइनली मैं कहूँगी कि बहुत कुछ डिपेंड करता है इंटीग्रेशन ऑफ द फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी एफर्ट्स, क्योंकि ये सब छोटे छोटे पीसेस मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव होल बनाते हैं। और सबसे बड़ा उसमें रोल जो होता है वो परिवार का, परिवार में कैसे रिलेशनशिप है, कैसा आपका उनके साथ इक्वेशन है, आप जो फ्रेंड सर्कल में है या स्कूल कॉलेज में है वो किस तरह का है, और फिर जो कम्युनिटी ऑन ओवरऑल। वी से बाय इट इज नॉट राइट टू से दैट कम्युनिटी में बच्चे इस तरह के निकलते हैं, कल्चर्ड नहीं होते या इसमें कल्चर्ड होते हैं। सो हमने ऐसी वाली बातें बहुत सारी सुनी हुई है कि जो कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा असर होता है, और जैसी परवरिश होती है उसके हिसाब से ही आपका आगे का चरित्र और डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है परिवारजनों के लिए भी और उन किशोर किशोरियों के लिए भी
कि हम अपना सिलेक्शन जो है और या जिसमें उठ बैठ रहे हैं वो बहुत केयरफुली ध्यान करें उस समय, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। जैसा कि डॉक्टर अनीता ने भी बताया कि फर्स्ट 30 इयर्स में आई वुड से नॉट जो आपका हड्डियों का ही होता है, ये सारा अपना जो हमारा आगे तक आज भी मैं जो हूँ वो शायद पहले जो एडोलेसेंट में जो बन जाते हैं ना, जो कैरेक्टर, जो पर्सनालिटी, जो थिंकिंग हमारा, वो आगे तक चलता है। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी नीड टू सी दैट वॉट एवर बेस्ट पॉजिटिव। आजकल तो उनको हम मेडिटेशन, योगा, ये सब भी बहुत एडवाइस करते हैं बिकॉज फॉर पॉजिटिविटी, सो दैट देयर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मंजू, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। यू आर रियली राइट, बिकॉज अवर यूथ दे हैव बाउंडलेस एनर्जी, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, they are full of brilliance, I feel. So they have so many outputs. Only thing is कि उनके इतने potentials हैं, we just need to ignite them in all these potentials so that they are converted into flames of achievement in a very positive manner. So तभी हम आज इधर बैठे हैं कि इनके जो भी doubts हैं वो सब clear करें, ताकि उनकी direction जो गलत ना कहीं हो जाए, सही direction में आगे चलते जाएं। तो हम चाहते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सोशल हेल्थ सब अच्छी रहें, और पहले से ही अगर कोई परेशानी है तो उसका हम बचाव कर लें ताकि वो बीमारी बने ही नहीं। तो हमारे साथ डॉक्टर अचला बत्रा भी हैं जो कि हमारी AOGD की प्रेसिडेंट हैं, और आज उनकी लीडरशिप में हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर अचला हमारे साथ हैं अभी। तो मैं चाह रही थी कि वो प्रिवेंशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी हमारे पास वैक्सीन भी हैं, जैसे अब कोविड के जमाने में तो सब जान ही गए हैं, कोविड वैक्सीन। तो इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी वैक्सीन हैं, इवन कैंसर तक का बचाव फ्यूचर में कुछ भी हो उससे हम इस उम्र में बचाव कर सकते हैं। तो अगर डॉक्टर अचला बत्रा हैं हमारे साथ तो पहले मैं उनसे ये क्वेश्चन लेना चाह रही थी। डॉक्टर अचला, नो मैं हूँ कि नहीं हूँ you are very much there, very much. Thank you. My thank connection you. is really troubling. Yes. I've been there for some time now, 10 minutes maybe, Yes, I saw you in between. Yeah. I know, but आपकी इतनी ज्यादा वो क्या कहते हैं चमक है कि आप थोड़ी देर भी आते हो तो हमें पूरे टाइम मिल जाती है आपकी। वो रेडियंस इज देयर ऑलवेज। सो आप बताओ। प्रिवेंशन जो है वो सबसे अच्छी चीज है किसी भी बीमारी के लिए, कि हो ही ना तो फिर सबसे अच्छी बात है। तो आजकल हम बहुत ज्यादा इसमें एडवोकेट कर रहे हैं, जैसे तुमने पहले कहा सर्वाइकल कैंसर, तो हमारे पास सर्वाइकल कैंसर की भी वैक्सीन है, जो कि एक हमारे मेडिकल फील्ड का एक चमत्कार कह सकते हैं कि हमने कैंसर को भी पकड़ लिया। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये सारे जन जाने तक ये सूचना नहीं है कि आज के दिन भी हम जब एक प्रोग्राम करते हैं इस तरह का, उसके बाद अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं अच्छा हमें तो नहीं पता था कि हम अपनी लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवा सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अब अवेलेबल है, बहुत फ्रीली इंडिया में अवेलेबल है, और 8 से 13 साल के बीच में अगर लगवा लें लड़कियां तो 2 वैक्सीन, और उसके बाद तो 3 वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ती है। पर ये नहीं है कि आप बाद में नहीं लगा सकते, पर इफेक्टिविटी सबसे अच्छी ये एडोलेसेंट एज में ही आती है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी अभी बन रही है, वो सब कुछ उनका विकसित हो रहा है, तो इम्यूनिटी भी विकसित हो रही है, तो इस समय वैक्सीन। दूसरी एक जो वैक्सीन अब लड़कियों को लगानी चाहिए, रुबेला की वैक्सीन, जो हमको 5 साल में बच्चों को MMR लगता है, तो उसके बाद 13 से 21 साल के बीच में अगर ये रुबेला भी लड़कियां लगवा लेंगी तो आगे जब उनको प्रेगनेंसी होगी तो उनके होने वाले बच्चे को रुबेला की तकलीफ नहीं होगी। बाकी हमारे जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन है आजकल तो सबको लगी जाती है, पर अगर किसी को नहीं लगी हुई तो वो लगवा लेनी चाहिए। और ये जो टेटनस की वैक्सीन भी अब लोग 5 साल के बाद कभी आगे लगवाते ही नहीं है, तो उसके लिए भी अब DT है जो कि 15 साल में लड़कियों को या सबको ही लगवा लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे तो हमें आगे और कोविड तो अब आ ही गया है हमारे साथ रहने के लिए, तो कोविड की वैक्सीनेशन भी अब बच्चों के लिए शुरू हो रही है। अभी तक तो 18 साल से बाद के लिए है, पर शायद वो भी अब शुरू हो जाएगी, तो वो भी लगवा लेनी चाहिए। तो प्रिवेंशन जो है हमेशा इज ऑलवेज बेटर देन क्योर,
जैसे कि अभी अनीता ने कहा कि हमें इनकी एनर्जी को इकट्ठा करना है, हमें इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है। तो किसी भी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए पहले एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। और सुजाता ने भी कहा कि उनकी डाइट अच्छी होगी, क्योंकि अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक ही अच्छा नहीं होगा, नींव ही अच्छी नहीं होगी, तो इमारत कैसे खड़ी होगी। तो हमारा आई थिंक हम लोगों का, सबका, गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जोर हेल्थ में एडोलेसेंट एज ग्रुप में होना चाहिए। बच्चों के लिए तो खैर कर ही रहे हैं, पर एक एडोलेसेंट एज ग्रुप है जो बीच की एज है, जहाँ पे शायद थोड़ी निग्लेक्ट हो जाती है। और हमें एडोलेसेंट एज के लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली। भी आजकल कोविड की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही हैं। वो सब घर में बैठ के कंप्यूटर पे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, तो ऑल द टाइम दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट एंड they are getting diverted from their studies. बीच में वो आया था कि वो क्या बच्चों ने अपने आप को सुसाइड करना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट कॉल्ड। तो इस तरह की चीजों से हमें टीचर्स को, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो एडोलेसेंट बच्चा है क्या कर रहा है फोन के साथ, इंटरनेट के साथ। थैंक यू डॉक्टर अचला, आपने बहुत ही अच्छे से बता दिया, खास करके वैक्सीन के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब सबको पता चल गया कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी है। मेरे को लगता है डॉक्टर मंजू और उनकी पूरी टीम भी सबको ये प्रोपेगेट करवा देंगे, जितने भी लोग हैं एडोलेसेंट हेल्थ के, इनके साथ भी जुड़े हुए, कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, जो कि अब 9 साल की उम्र में ही लग जाएगी, और 15 साल की उम्र से पहले तक लगवा ले तो 2 वैक्सीन काफी हैं, और अगर उसके बाद लगती हैं तो फिर 3 वैक्सीन लगानी पड़ती है। हाँ जी डॉक्टर मंजू। मैं ये इसी डॉक्टर फोरम से मंजू रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ डॉक्टर अचला और डॉक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे प्रतिमा, कि अगर ये खाली वैक्सीन पे अगर हम एक सेशन कॉलेज के लिए करें, सिर्फ ये सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन पे, क्योंकि उनके बहुत सारे डॉक्टर अचला और बिल्कुल जब भी आप बोलेंगे हम अब फिक्स कर देंगे। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर अचला एंड डॉक्टर, बिल्कुल थैंक यू सो मच। सो अब हम जानते हैं कि जब डॉक्टर मंजू ने इतना इंटरेस्ट किया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन में, तो हमारे ये आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको इसका कितना फायदा हुआ होगा। सो बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रेज किया डॉक्टर अचला, after all the president. So I think people have really taken it in a positive manner today. और ये बहुत पुरानी एक वो है ना कहावत की, if youth only knew and age only could, but now we are making it the other way around, कि youth will know everything and age will be also able to do that. So अब पहले से समय से हमें उनको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी तो आगे वाली जो इश्यूज हैं वो होंगे ही नहीं। सो अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। I think again सर्वाइकल कैंसर क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें मालूम है कि कॉन्डम्स वगैरह भी जो होते हैं, जो कि हम कॉन्ट्रासेप्शन में यूज करते हैं अदरवाइज, बट वो भी बहुत मदद करते हैं इवन फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर आल्सो। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि हमारा कॉन्ट्रासेप्शन जो है एडोलेसेंट्स के लिए, तो ये मैं जानना चाहूंगी फ्रॉम मिस सोमी, जो कि नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत हैं, कि कौन से डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं हमारे एडोलेसेंट्स के लिए, क्योंकि खास करके हमारी यंग गर्ल्स की शादियां भी हो जाती हैं इंडिया, कई जगह में है आज, कई जगह उल्टा भी है कि बहुत लेट भी शादियां हो रही हैं, 30 साल 35 साल में भी हो रही है, और कई जगह 18 साल में भी हो जाती है। तो खास करके हमारी एडोलेसेंट्स के लिए क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं? मिस सोमी। Yes, thank you ma'am for your question. Yes ma'am, can you hear me? Yes ma'am,
Am I Yes, audible? we can hear. Yes. Yes, Thank yes, you. yes. Thank you all the panelists here, and thank you for Yes, yes, we inviting can me. hear you. Yes, ma'am. Yes, I would like yes, to yes. answer regarding the contraceptive use for the adolescents. So यहाँ पे जो है हमारा किशोरी एंड किशोर के लिए जो अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्शन है, स्पेशली मेल के लिए, किशोर के लिए मेल कॉन्डम्स आर अवेलेबल एज वेल एज फॉर द फीमेल कॉन्डम्स, बट फीमेल कॉन्डम्स हमारे इंडिया में बहुत वाइडली यूज नहीं करते हैं बिकॉज इजीली अवेलेबल भी नहीं है और कॉस्टली भी है, और वाइडली उन लोग को इजीली अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते। इससे अच्छा है वो लोग मेल कॉन्डम यूज करते हैं विच इज रिडीली अवेलेबल है। बट उसमें क्या है, हमारा जो परसेंटेज है इफेक्टिवनेस मेल कॉन्डम में है 98% इफेक्टिव है, उसमें से 100 में से 2 जो है इट्स लाइकली टू हैव प्रेगनेंसी होने का, बिकॉज व्हाई इट इज हैपन, बिकॉज दे डोंट पुट प्रॉपरली, बिकॉज दे डोंट use the condom properly because of that। तो ये वजह हो सकते हैं मेल कॉन्डम्स में 100 में से 2 प्रेगनेंसी होता है यूज करने के बाद भी, और फीमेल कॉन्डम्स में 95% इफेक्टिव है, बट इंडियन सिनेरियो में हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं एज इट इज नॉट इजीली यूजेबल एंड इट इज कॉस्टली, इसके वजह से। बट एक ये कॉन्डम जो है अदर देन प्रेगनेंसी के लिए प्रिवेंट के अलावा हम HIV भी उससे बचाते हैं एज वेल एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाते हैं, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द बैरियर बर्थ कंट्रोल एंड इट इज बेस्ट फॉर एडोलेसेंट्स। तो यहाँ पे कॉन्डम के अलावा बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन है जो अवेलेबल है। एक तो है हार्मोन पिल्स, उसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें जो है इट इज वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है, सो दैट प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं और प्रिवेंट इवन it does not help with the prevention of the sexually transmitted diseases, but यहाँ पे उसके लिए हम टेबलेट यूज करोगे, हार्मोनल टेबलेट यूज करोगे, उसके साथ कॉन्डम यूज करना आवश्यकता है, जरूरी है, एंड so that they can even prevent from all the sexual activity infections, or sexual infections can be prevented। Condom is also needed when we are using even pills। एंड उसके अलावा आजकल तो बहुत सारे इम्प्लांट्स भी आ रहे हैं जिसमें बोलते हैं सबडर्मल इम्प्लांट्स आते हैं। सबडर्मल इम्प्लांट जो है हमारे ये हार्मोन से बनता है, जो हमारा इट्नोजेस्ट्रोल जो हार्मोन है उसे भी बनता है, एंड ये हमारे जो माचिस का स्टिक है ना, मैच स्टिक, उसके साइज का बनता है और हमारे अपर आर्म में स्किन के दौरान उसके अंदर देता है, ये इम्प्लांट रहता है, बट उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, बट वाइडली हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी तक यूज नहीं है। हम इसमें इफेक्टिवनेस जो है 99.95% इफेक्टिवनेस है प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए, और ये जो है ये इम्प्लांट जो है सेफ है, लॉन्ग टर्म है, हम लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल भी है और यूज करते हैं, और 3 से 5 साल तक हम एक बार लगा दिया तो वो हम यही 3 से 5 साल तक रह सकता है। और उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, जैसे कि एक बार आता है हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशली सबडर्जन में भी बहुत ये इंजेक्शन सबका डिमांड है आजकल। DMPA कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन जो 3 महीने में एक बार लेता है, उसका इफेक्टिवनेस जो है 90% है इफेक्टिवनेस प्रेगनेंसी के प्रिवेंट करने के लिए। बट जब भी ये यूज करेंगे तो कॉन्डम यूज करना आवश्यकता है, क्योंकि मैं बता रही थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डम भी आवश्यकता है उसके साथ ही साथ। और उसके अलावा हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव दूसरा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल है, जो छोटा सा है, वो T शेप का है, और ये जो है ये डिवाइसेस जो है कॉपर का इंसर्ट किया, कॉपर उसमें है जो 99.2% जो है इफेक्टिव है टू प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेगनेंसी। उसके अलावा ये जो है कुछ 10 से 12 साल का भी अवेलेबल है, और एज वी नो हमारा दूसरा 3 से 5 साल का भी अवेलेबल है, दैट इज IUD लिवोनोजेस्ट्रोल है जो इंक्लूड है उसमें, जिसमें प्रेगनेंसी जो है प्रिवेंट करता है 99.8% इसके लिए। एंड वो जो है क्या लाभ है इस IUD का, ये सेफ भी है, लॉन्ग टर्म हम यूज कर सकते हैं, और इसमें जो है हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम सबको पता है
कॉन्ट्रासेप्टिक रिंग भी अवेलेबल है वेजाइनल का, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मगर वो भी 91% उसको प्रेगनेंसी के प्रिवेंट करने के लिए फ़ायदा देखता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी। और सबसे ज़्यादा जो है कॉमनली हम एडोलेसेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉम्बाइंड ओरल पिल्स। कम्बाइल्ड ओरल पिल्स जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोल हार्मोन से बनते हैं, और ये जो है ये पिल्स है वो वाइडली यूज भी करते हैं। बट इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अवेलेबल है, जो 72 आवर्स के अंदर हम कोई भी सेक्सुअल एक्ट अनवांटेड होने की बात हम दे सकते हैं, दैट इज इमरजेंसी पिल्स, और आई पिल्स भी बोलते हैं। और ये जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है प्रोजेस्टेरोल हार्मोन के साथ ही बनते हैं, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द इफेक्टिव। मगर ये यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो बहुत सारे अवेलेबल है, बट हम इंडियन में मैरिड हो या अनमैरिड, उन लोगों को बैरियर्स होती है यूज करने के लिए एडोलेसेंट्स के लिए, एंड देयर आर द बैरियर्स। व्हाई? बिकॉज फॉर द सेक्सुअली एक्टिव एडोलेसेंट्स वी डोंट स्पीक openly, we don't discuss, maybe a family or otherwise in the colleges where even the sex education has been imparted, but they are not been openly discussed, so the barriers are there। barriers के लिए बहुत सारे चीजें हैं, हम उसको overcome होना चाहिए, so that they will be aware and oriented to use this all for contraceptive। thank you ma'am, I think। थैंक यू मिस सोमी, आपने बहुत ही अच्छे से जैसे कि कैफेटेरिया में बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, आपने बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन भी बता दिए, एक बास्केट में इतनी सारी वैरायटी है, ताकि ये लोग अगर इसका लाभ उठाएंगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से, अनवांटेड अबॉर्शन से, और कॉन्डम यूज करने से अनवांटेड कितनी सारी भयंकर इन्फेक्शन से और इवन कैंसर से इनका बचाव हो सकता है। पर हमें एक चीज का और भी ध्यान देना है, क्योंकि एज पर अवर पॉक्सो लॉ, जो कि अभी रिसेंटली ही आया है, 18 ईयर्स से नीचे सेक्सुअल एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड। तो इवन इफ समबडी इज मैरिड, जो कि पहले जमाने के हिसाब से या अभी भी कई कस्टम्स में कर देते हैं, तो वो भी एज पर लॉ इज इलीगल। तो ये बातें भी ध्यान में रख के आगे उनको ये कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया आपने, तभी तो आज हमारा जो यूथ है, जो कि हमारी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री की और हमारे यूथ, और क्योंकि यही हमारे फ्यूचर हैं, और जितने ये हमारे स्ट्रेंथ होते जाएंगे, सही डायरेक्शन में जाते जाएंगे, तो हमारी कंट्री भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाएगी। तो इसीलिए आज हम आप सबका योगदान मिला, वो भी टीचर्स डे वाले दिन। तो इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी रेनू जी से, कि इज देयर एनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया फॉर आवर एडोलेसेंट्स? रेनू जी, जो कि हमारे नर्सिंग कॉलेज से हैं, मिस रेनू, आर यू देयर? यस मैम, हेलो गुड प्रतिमा आफ्टरनून। कुछ कहना चाह रहे हैं पहले। Yes, ma'am, डॉक्टर प्रतिमा। Yes, हाँ रेनू जी, डॉक्टर प्रतिमा कुछ मैं- कहना चाह रही थी। श्योर मैम, या, आप ओके। मैं अनीता 2-3 चीजें कहना चाह रही थी। एक तो सबसे पहले कि हमें अपने यूथ को, हमारे किशोरियों को ये ABC स्ट्रेटेजी हम बताते हैं। ABC स्ट्रेटेजी का मतलब है, जैसे आपने कहा पॉक्सो एक्ट के अंदर, और सोशली और मॉरली ऑल्सो, शादी से पहले सेक्स हम हमारी कंट्री में थोड़ा सा इट इज नॉट लुक्ड आफ्टर इन ए वेरी हेल्दी वे। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि एब्स्टिनेंस रखा जाए, दैट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव यू नो फॉर यूथ्स। सेकेंड इज कि अगर आपको मतलब रिलेशन रखने ही रखने हैं, तो एटलीस्ट वन should be very faithful to one person, you know, changing partners leads to more problems, more infection. And the third thing is that as you have said, use of condoms, no? So important thing is कि हमें यहाँ पे जब हम sexual activity in adolescents में बात करते हैं, तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है, infection as well as pregnancy। और infection से prevent करने के लिए condom is the best, और जो pregnancy से बचने के लिए हमारी जो oral contraceptive pills या इंजेक्शन DMPA जैसे हमने बात करी है, ये जो है इनकी जो फेलियर रेट है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए हम एडवोकेट करते हैं हमारे यूथ के लिए कि डुअल कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें। डुअल कॉन्ट्रासेप्शन मींस कंडोम प्लस
oral contraceptives, condom plus emergency pills. So it should be always a dual contraception which we are promoting for our this thing, adolescent. And तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि for all our girls, you should maintain a menstrual calendar. आजकल तो बहुत सारे हमारे apps बन गए हैं जिसपे कि आप menstrual calendar use कर सकते हैं, because कई बार लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि हमने पीरियड मिस कर दिया है, एंड बाय द टाइम दे कम टू नो दे आर प्रेग्नेंट, इट इज ऑलरेडी 16 वीक्स, 14 to 16 वीक्स. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भी वो अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर रेगुलरली बना के रखें, जिससे कि कोई भी इरेगुलरिटी इतनी मतलब हो कि भी आप उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, वो भी आइडेंटिफाई कर पाए. और स्पेशली सेक्सुअली एक्टिव हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल कैलेंडर. Thank you, Anita, for barging in between. थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रतिमा. आप तो कुछ भी कहेंगे तो वो तो इतना जरूरी है, इतना लाभदायक है हमारे सभी जितने भी सुनने वाले हैं, इवन हमारे जो एडोलेसेंट्स और इसके अलावा जो हमारे बाकी भी लोग हैं, बाकी टीचर्स भी हैं, क्योंकि जो आप बात बताएंगे वो तो इतनी जरूरी इम्पोर्टेंट बात है और राइट आप बताएंगे, सो दैट दे ऑल गो इन dual contraception. I wanted to highlight. Or any time, yeah. yes contraception is really very important. पहले भी उन्होंने भी बोला, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ हम चाहते हैं कि इनको कोई भी इन्फेक्शंस भी ना हो और ना ही कोई इनको कैंसर जैसी परेशानियों से गुजरना पड़े आगे जाके, क्योंकि उस समय तो पता नहीं चलता, नुकसान तो बाद में होते हैं. उस समय तो इंसान को लगता है सब कुछ अच्छा है, वो इमोशनली और जो भी है उन भावों में आके ऐसे चले जाते हैं और बाद में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम सबको तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं इतने सालों में, क्योंकि यही बच्चे जब हमारे पास आते हैं ऐसी सिचुएशंस में, कितनी पैथेटिक सिचुएशन होती है, और उनके अकेले के लिए नहीं, उनकी पूरी फैमिलीज के लिए. सो ताकि वो ना उनसे गुजरे, इसी के लिए आपने ये सब बताया. सो थैंक यू वेरी मच. सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट रेनू जी, जो कि पहले भी हमारे साथ जुड़ती रही हैं कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स में और नर्सिंग कॉलेज से ही हैं. रेनू जी आप बताइए हमें, मैंने आपसे पहले भी पूछा, इज देयर एनी हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया फॉर एडोलेसेंट्स? Yes, ma'am. सबसे Yes. पहले तो good afternoon everyone, and I wish you all a very happy Teachers Day. तो यस, गवर्नमेंट भारत की सरकार ने अपने किशोर किशोरियों के लिए बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, और ये नेशनल प्रोग्राम सिर्फ हेल्थ के बेसिस पे नहीं, सिर्फ उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए प्रोग्राम्स हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम्स हैं, काउंसलिंग करने के लिए, उनको करियर गाइडेंस देने के लिए काफी सारे प्रोग्राम हैं. और इन प्रोग्राम्स का जैसे कि हमने पहले भी अभी सुना है कि हमारा मेन फोकस प्रॉब्लम होने के बाद उसका सॉल्यूशन देने पे नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम से कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिव सर्विसेज पे और प्रोमोटिव सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान दिया गया है. और जैसे सरकार प्रोग्राम लॉन्च कर देती है, लेकिन उन प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को बताने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स, स्पेसिफिकली आशाज, एएनएम्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, हर कैडरे जो हेल्थ केयर वर्कर का हर कैडरे है, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि लोगों को वो जानकारी पहुंचे और वो उसका बेनिफिट ले सके. तो इसके लिए जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं किशोर किशोरी किशोरों के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिनमें कि बालिका समृद्धि योजना, जैसे कि इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जब भी कोई फीमेल या कोई किशोरी या कोई फीमेल चाइल्ड जब पैदा होती है, तो सरकार उसकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है 500 रुपए के रूप में. और उसके बाद जैसे जैसे वो स्कूल में आगे बढ़ेगी, हर एक क्लास के बाद, जैसे पहली से तीसरी क्लास के बाद 300 रुपए सालाना उसको मिलता है, और चौथी क्लास के बाद 500 रुपए, 5वीं क्लास के बाद 600 रुपए हर साल, छठी 7वीं क्लास के बाद 700 रुपए, 8वीं क्लास के बाद 800 रुपए, और 9वीं 10वीं क्लास के बाद 1000 रुपए सालाना सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है. और इसी तरीके से राजीव गांधी स्कीम है, जो कि किशोरियों की एम्पावरमेंट के लिए स्टार्ट की गई है, जिसमें कि उनकी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें कि हम हर हफ्ते एक आयरन फोलिक एसिड की 100 mg की टैबलेट उनको देते हैं, ताकि बिकॉज ताकि उनको 18 years के बाद दे विल एंटर इनटू प्रेगनेंसी और स्टेट ऑफ मैरिज, तो वहां पर सीधा अनीमिया से काउंटर एक्ट
उससे प्रिवेंट करने के लिए उनको स्कूल टाइम से ही आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स, उनका आयरन फोलिक एसिड का डाइट में क्या महत्व है, ये सब समझाया जाता है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, इसमें तो सरकार ने बोला है कि 6 से लेके 14 साल तक के हर बच्चे को शिक्षा का उनका जन्म अधिकार है। एवरीवन इज हैविंग अ राइट टू एजुकेशन एंड दे आर बीइंग प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन इस एज के दौरान। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम अभी रिसेंटली सरकार ने लॉन्च करी है, जो कि 152 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है और जिसको फ्री डेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से सिर्फ हेल्थ ही नहीं, उनकी एजुकेशन, उनकी काउंसलिंग, उनके वोकेशनल करियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हैं। थैंक यू रेणु जी, आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी और इससे हमें भी बहुत ज्ञान मिला। तभी तो कहते हैं टुगेदरनेस इज अ ब्लिस। आई थिंक आज इस प्लेटफॉर्म में आप सबके साथ हमने मिलके जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सबका ही ज्ञान बढ़ रहा है। और आपने एनीमिया की भी बात की, क्योंकि एनीमिया एक बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि हमारी किशोरियों में मैम डॉक्टर प्रतिमा मित्तल ने शुरू में ही बोला जब पीरियड्स की बात हो रही थी कि हीमोग्लोबिन लेवल भी ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन मींस आयरन प्लस प्रोटीन। और अगर लड़की का या लड़कों का भी अगर हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। कम हीमोग्लोबिन होगा तो कम ऑक्सीजन जाएगी, कम ऑक्सीजन जाएगी तो बॉडी को एनर्जी भी कम मिलेगी और बॉडी काम भी कम कर हो जाएंगी वहीं से। तो इस करके Anita ma'am, can I just pitch in? Dr. Anita ma'am, can I just make a comment over here? Yeah, thank you very much. Thank you very much. दो तीन पॉइंट्स पे मैं जरूर स्ट्रेस करना चाहूंगी। एज फार एज एनीमिया इज कंसर्न, जो हमारे कंट्री में एनीमिया है, कुछ सर्वेस के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, 10 से 19 साल की जो एज ग्रुप है, एनीमिया जो है 40 to 50% जो हमारे किशोर किशोरियां हैं उसमें पाया जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन लेवल किस लेवल तक होना चाहिए, किस लेवल से कम हीमोग्लोबिन जो है वो एनीमिया कहलाता है और किस लेवल से कम है जो वो सीवियर एनीमिया कहलाता है। तो जो लेवल्स हमने लिए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो 12 ग्राम % है उससे ऊपर है, उस तक है, देन इट इज ओके। अगर उससे कम है तो एनीमिया कहलाता है, और अगर 7 ग्राम % से कम है तो वो सीवियर एनीमिया कहलाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जो वीकली आयरन फोलेट स्कीम है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टार्ट की गई है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में स्टार्ट की गई है एंड कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी स्टार्ट की गई है, जिसके तहत जो किशोर किशोरियां हैं उन्हें वीकली बेसिस पे 100 मिलीग्राम्स ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 5 मिलीग्राम्स ऑफ फोलिक एसिड दिया जाता है। इसके साथ ही जो एज ग्रुप है विच इज 10 years to 19 years on the basis of on weekly basis which is given, जो दिया जाता है। इसके साथ ही जो डीवर्मिंग है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सभी बच्चों को डीवर्म करने के लिए हर 6 महीने पे जो टैबलेट्स हैं वो दी जाती हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड द वेरी पर्टिनिंग क्वेश्चन इज, जो हमने सर्वाइकल कैंसर पे जो बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताना, सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन बताना, उसके लिए जो वैक्सीनेशंस हैं उसे बताना। एंड आप लोग मतलब इट विल बी अ सरप्राइज टू नो कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसका मतलब ही नहीं जानते जो हमारे जो किशोर किशोरियां हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीन्स क्या हैं। सो एज वेरी राइटली सेड, वी कैन कीप अ सेपरेट सेशन फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सुजाता फॉर एडिंग अप। बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स टच किए और उनको ज्ञान भी दिया। ये तो बात है ही है कि हम लोगों में भी, हम आपस में भी हमेशा फिजिकल बात हमेशा होती है, सुपरफिशियल सेंस की बात होती है कि कोई अच्छा लग रहा है, उसका फेस अच्छा लग रहा है, उसके नेल्स अच्छे पेंटेड हैं कि नहीं हैं, बाल अच्छे हैं कि नहीं है, पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम कभी
डिस्कस भी नहीं करते और बल्कि ज्ञान भी नहीं है लोगों को भी। आपने बोला सर्वाइकल, जब सर्विक्स ही नहीं मालूम क्या है, क्या सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, तो वो सबको पता है गर्दन की पेन है, तो वो सोचते हैं शायद सर्वाइकल कैंसर गर्दन का कैंसर है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, गर्भाशय जो है, तो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसके बारे में अगर कोई बोलेगा भी तो बोलेंगे बात नहीं करो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बात कर रहे हो। तो ये जो बातें हैं कि मुझे 27 में जब मैं MBBS में आई थी तो हमें वो रैगिंग के दौरान उन्होंने पूछा कि तुम्हारी किडनी कहाँ है, तो हमें शर्म आला किडनी तुम्हारे नोज में है रैगिंग के टाइम, तो हमें बड़ा गंदा लग रहा था, मतलब बिकॉज हम लोगों की शुरू से इसी तरह से पहले भावना रही है कि हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या यूरिन के ऑर्गन्स के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ सही नहीं रहेगी, कल को इसकी बीमारी होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यूट्रस के बारे में बात करना, पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं है। तो जितना भी बच्चों को इवन स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा हमें बार बार इस तरह के प्रोग्राम्स करके इनको इन सब के बारे में सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। आई थिंक अनीता का कनेक्शन अब चला गया क्या? हाँ हाँ, आप बोलो डॉक्टर अर्चला। नहीं, मुझे लगा अब तुम्हारा कनेक्शन चला गया। हाँ, वो सर्वाइकल जो है उसकी ओपनिंग से ही तो पीरियड निकल के आता है और फिर वो वेजाइना से होके बाहर आता है, इतनी सी बात है। तो ये जानना, ये ज्ञान जानना बहुत ही जरूरी है। और आज मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम एडोलेसेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, इवन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी अभी हमने बात नहीं की, तो मे बी हम आगे भी चल के डॉक्टर अर्चला की परमिशन लेके और आप सब जितने सीनियर्स हैं हमारे साथ, आप सबकी टुगेदरनेस के साथ आगे भी और कुछ प्रोग्राम कंटिन्यूएशन में करेंगे, जिसमें कि हम युवाओं के और भी बहुत सारे इश्यूज को टच करेंगे। जैसे अभी डॉक्टर सुजाता ने बोला भी हीमोग्लोबिन, तो गर्ल्स में तो 12 ग्राम का लेवल ठीक है, पर बॉयज में 13 ग्राम ठीक है। उनका अगर 13 ग्राम से कम है तो उनको भी एनीमिया है, और जो गर्ल्स हमारी उनके 12 ग्राम से कम है तो वो भी एनीमिया है। क्योंकि जो हल्का सा एनीमिया भी होता है वो भी बहुत परेशान करता है, क्योंकि लोगों को काम करने में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसकी वजह से काफी नुकसान होता है उनको, उनके परिवार को और फिर हमारे देश को भी। तो ये जो छोटी बातों का ही अगर हम ध्यान दे देंगे तो बहुत ज्यादा हमारा आगे चल के फायदा होने वाला है। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर अर्चला हमें चलते चलते, क्योंकि अब समय भी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुछ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें बताइए युवाओं को ज्ञान देने के लिए। डॉक्टर अर्चला, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर प्रतिमा से बोलूंगी, बताएं। जब तक डॉक्टर अर्चला आते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट हम सबको ही थोड़ा थोड़ा ये इस दुनिया में ये थोड़ी परेशानी है और हम सब एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ये हाँ, डॉक्टर प्रतिमा आप बताइए थोड़ा सा हमें जाते जाते। नहीं, मैं तो बस अपने किशोरों को यही कहना चाहूंगी कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, और अपने इस समय पे आपको ये डिसीजन लेना कि क्या सही है, ये क्या गलत है, उस पे विश्वास रखिए कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बड़े लोग हैं, वो आपको कभी भी गलत नहीं बताएंगे। तो कुछ उनकी बातों को मानिए, और जो आज हमने डिस्कस करी हैं, जो इश्यूज हमने आज डिस्कस करे हैं, जैसे कि लड़कियों में माहवारी के बारे में, तो उसमें अगर आपके कोई भी गलत आपके मन में कोई भी शंका है किसी तरह की, तो उसका समाधान जरूर लीजिए, और वो भी किसी ऑथेंटिक पर्सन से लीजिए, ना कि अपने किसी दोस्त से पूछें। और उसके बाद उसमें, क्योंकि वो दोस्तों की भी नॉलेज पूरी नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर से या किसी से भी सलाह लें। माहवारी के मामले में 2-3 चीजें जो हम रहना भूल गए थे, वो थी कि एक तो सफाई के बारे में, क्योंकि हमने देखा है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वो हैं वो अगर आपने माहवारी के समय में सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तो उससे ज्यादा परेशानी होती है। और उस टाइम पे ये जो हम कई जगह पे ये चलता है कि नहाना नहीं है, अलग रहना है, वो सब चीजें आजकल हम नहीं मानते हैं। हर रोज नहाना चाहिए, और
काफी पानी अच्छी अधिक मात्रा में लेना चाहिए। जैसे आपका अगर वजन 60 किलो है तो आपको कम से कम 2 ml पर केजी हम कहते हैं, तो कम से कम 1200 ml पानी जरूर लेना चाहिए पूरे दिन में। इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जब आप अपने टॉयलेट जाएं, बाथरूम जाएं, तो हमेशा क्यों अपने जो प्राइवेट लड़कियों के जो प्राइवेट अंग हैं उनको ऊपर से नीचे की तरफ धोना चाहिए। टेंडेंसी ये होती है कि हमेशा नीचे से ऊपर धोते हैं, तो उससे जो फीसिस होती हैं, जो टॉयलेट वाली सीट्स पे जब हम बैठते हैं, जो फीसिस होती हैं वो कई बार आपके यूरिन वाली जगह पे लग जाती हैं, जो कि बहुत पास हैं, और उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। सिमिलरली लड़कों में भी हम ये कहते हैं कि जो अपना जो पेनिस है उसको अपना रिट्रैक्ट करके उसके ऊपर जो स्किन होती है, ढीली स्किन होती है, उसको पीछे करके अपने को रोज साफ करना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो। तो हमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचना एडोलेसेंट से ही शुरू कर देना चाहिए। और जो माहवारी अगर लड़कियों को हो रही है तो पैड्स को, जैसे डॉक्टर अनीता ने बताया कि कम से कम 4 पैड रोज बदलने चाहिए, और रोज पैड बदलना चाहिए, रोज अंडरगारमेंट्स बदलने चाहिए, कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज करने चाहिए। और अगर आप कपड़ा यूज करते हैं, हालांकि कपड़ा पैड्स आजकल सरकार ने लड़कियों को मुहैया कराए हैं बहुत कम दामों पे, 6 रुपीज में 6 पैड्स लड़कियों को मिलते हैं, और वो आशा वर्कर ही दे देती है। तो उनको वो उसमें अगर आपको कॉस्टली लग रहे हैं तो आप आशा वर्कर से सस्ते सब्सिडाइज पैड ले सकते हैं। पर अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो ये देखना है कि कपड़े को हर बार वॉश करके और अच्छे से धूप में सुखा के तब अंदर स्टोर करना है। अगर गीला कपड़ा स्टोर कर लिया जाएगा तो उससे इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर पैड को फेंकना कैसे है, जैसे ये भी बहुत जरूरी है कि हर पैड को आपको रैप करके और उसको कूड़े में न्यूज़पेपर में रैप करके कूड़े में फेंकना है, कभी भी फ्लश नहीं करना है। और सबसे ज्यादा आजकल हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके लिए आजकल हम लोगों ने एक मेंस्ट्रुअल कप भी आ गए हैं, जो कि बहुत सस्ते भी हैं, 5 साल तक यूज कर सकते हैं, सिलेस्टिक के हैं, और उनको एक बार हम डालना सीख लें डॉक्टर के साथ में तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा टॉयलेट और बाथरूम जाएं तो हमेशा अपने नीचे के अंगों को पानी से धोएं, पर्याप्त मात्रा में पानी से वॉश करें, बार बार अपने हाथ धोएं जब भी जरूरी हो। और जैसा कि हमने पहले बताया कि अपना मानसिक संतुलन बना के रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना है, जो काम आपको बहुत अच्छे लगते हैं और जो आपको लगता है कि आपको इस चीज में रुचि है, वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को बताएं और उनके ऊपर अपना काम कीजिए, जिससे कि आप उसमें एक्सेल कर पाएं। और सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, और इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि जो गंदी आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग या ड्रिंक करना, ये जो सब आदतें हैं, ये सबसे ज्यादा शुरुआत जो है इनकी एडोलेसेंट में होती है। आप देखेंगे जितने भी लोग स्मोकर्स होते हैं वो जो स्मोकिंग की शुरुआत जो है वो आप युवा अवस्था में एडोलेसेंट हेल्थ के टाइम पे शुरू करते हैं। तो इसमें आपको हमेशा हर चीज के लिए ये देखना है कि इससे मुझे फायदा कितना है और नुकसान कितना है। अगर आप उसको संतुलन करके देखेंगे तो हमेशा ऐसी गंदी आदत आपको पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप जान जाएंगे कि इसका नुकसान कितना ज्यादा है और फायदा तो सिर्फ क्षणिक है, दैट इज ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि हमें एक आगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल सकता है। तो उन चीजों का ध्यान रखना। दैट्स ऑल। थैंक यू डॉक्टर प्रतिमा, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। और ये खास करके ये अब्यूज जो है, एक तरह की अब्यूज ही है, स्मोकिंग शुरू कर लेना, अल्कोहल शुरू कर लेना, और आजकल तो ड्रग्स भी हो गई, ड्रग्स पार्टीज भी होने लग गई, और वो ऐसे है कि वो करना भी नहीं चाहते, देखा देखी बस शुरू हो जाती है। तो इन सबको ये जो ड्रग एब्यूज वाली बातें, अल्कोहल और स्मोकिंग, क्योंकि बाद में जाके फिर वही लोग पछताते हैं जब कैंसर तक की बीमारियां हो जाती हैं। स्मोकिंग तो इतनी जानलेवा चीज है, हार्ट अटैक्स होते हैं, क्या क्या कुछ नहीं होता। तो ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट टच किया। तो वही बात है ना कि हम अगर नेचुरल 6 डॉक्टर्स को फॉलो करें, एक क्लीन हवा और वाटर, क्लीन वाटर का इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट जैसे डॉक्टर सुजाता ने बताया, हमारी एडिक्वेट एक्सरसाइज हो, और सन को सनशाइन, सन में रहें, और
तो ये सारी चीजें, और स्लीप जो कि बहुत सो रहे हैं, फिर 6 बजे उठ रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक 8 घंटे की जो कंटिन्यूस स्लीप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ही ने बताया कि ब्रेन से रिलेटेड है हमारे हार्मोन्स का रिलीज होना, और जिसकी कारण से अगर परेशानियां आती हैं तो हमारे सारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कितनी आगे परेशानियां होती हैं। तो अगर हम पहले से प्रिवेंशन करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। और बहुत ही सिंपल है, वो जो पहले वाले लोग कहते थे तो हम मजाक उड़ाते थे कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी। बहुत ही बात है, इनको हम सीरियसली समझें तो ये बहुत ही आगे हमारे को बहुत चीजों से प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे साथ आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे आपसे सीनियर लोग जुड़े रहे और जिन्होंने कि आगे ज्ञान देने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर रक्षा अरोड़ा जो कि बहुत ही बड़ी सीनियर टीचर हैं। मैंने अभी देखा कि मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में बहुत दिनों तक प्रोफेसर और यूनिट हेड रही, और ये भी बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस काम अभी भी करती हैं। बहुत सारे अपने हेल्पर्स की भी, हर किसी की हेल्प करती हैं। तो अगर मैम डॉक्टर रक्षा अरोड़ा को लाया जा सकता है मिस्टर शिवम, अगर डॉक्टर रक्षा अरोड़ा मैम है तो कुछ शब्द उनसे भी हम सुन लें। Yes, Shivam, can I have Dr. Raksha? Dr. Hello, hello. Raksha ma'am, are you there? Yes. Yeah. Yeah. Hello, Dr. Anita. Hello. हाँ, Happy Teachers Day to all, Dr. Pratima. Yes, नमस्कार yes. मैडम। हाँ, नमस्कार. So nice to see. मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ सबसे वो जो सबकी बातें सुनना, स्पेशली अभी जो वो रेनू जी ने बताया था और डॉक्टर प्रतिमा ने अभी बताया कि मतलब हम उनको वी कैन कैच देम यंग, शुरू से ही अगर हम उन्हें अच्छा समझाएं और मतलब उनको लगे कि हाँ वो किसी के पास जा सकते हैं। हमारा रोल एज सीनियर्स ये है कि हमारी जो अप्रोचेबिलिटी है वो मतलब वो हमें कॉन्फिडेंस मिले। ये सब बच्चे हैं जो वो शर्म बहुत करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एटीट्यूड बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वो लगता है कि वो हमें अप्रोच नहीं कर सकते। एक तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा ये कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, हमें मतलब अभी ये देखना कि हमारी ऑडियंस में यंग बच्चे कितने हैं। आई वाज रियली अच्छा हुआ डॉक्टर अनीता, थैंक यू वेरी मच। मैं पूछना चाह रही थी कि हम ये ना हो कि हम आपस में डिस्कस करते रहे। हमारा जो लेक्चर है ना ये YouTube में भी जाना है, ये पूरा YouTube में जा रहा है और ये हमारे सारे बच्चे बार बार देख पाएंगे। हाँ, तब तो बड़ा अच्छा, क्योंकि हाँ जो ऑडियंस है वो हमारे बच्चे होने चाहिए और उनसे थोड़ा क्वेश्चन, उनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए थोड़ा सा, रादर देन हम ही बताते रहे। और उनसे थोड़ा अगर ये डायलॉग होता रहेगा ना तो मुझे लगता है उसका ज्यादा फायदा होगा। ये थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, we are planning to do lot of programs मैम, और ये एक फोरम से तो फायदा ही नहीं होता, हम कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अदर आप सबके गाइडेंस से, आप सबकी मदद से करते जाएंगे मैम। थैंक यू मैम फॉर योर इनपुट्स। एंड डॉक्टर अचला वापस आ गए हमारे पास। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर अचला। हाँ, अब आपको हमने बीच में बुलाया था तो वो प्रॉब्लम होगा, तो जाते जाते आप भी, अभी डॉक्टर रक्षा मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई, अब आप भी हमें जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? आज स्पेशल डे है, टीचर्स डे वाले दिन बच्चों के लिए। डॉक्टर अचला। आई डोंट नो मैं कितनी देर बोल पाऊंगी क्योंकि ये हाइड एंड सीक हो रहा है। बोलो जितना भी बोलो। हाँ कोई बात नहीं, आप बोलिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे तुमने अनीता ने बोला कि ये तो एक बिगनिंग है और इसको हम आगे ले जाएंगे। इसी तरह से आज हम नर्सिंग कॉलेज के साथ हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि सर्वाइकल कैंसर पे करो। ऐसे ही हम दूसरे कॉलेजेस और स्कूल में भी जाके सारे एडोलेसेंट्स के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे और जैसे डॉक्टर रक्षा ने कहा कि डायलॉग करेंगे उनके साथ। और अब क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं, अब हमारे को उनके साथ
इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाएगा थ्रू देयर नेटवर्क्स, तो हम उनके साथ और प्रोग्राम करेंगे और अपने यूथ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Thank you, Dr. Ashla. That means so much from you. We also have Dr. Anju Rurior. She has come all the way from Patna. बहुत बड़ी senior consultant है गायनी की ऑप्स की. Dr. Anju Rurior, you would like to say two words? Dr. Anju Rurior. Dr. Anju आप हैं? Dr. Yes, Anju I'm there. हैं, Hello. तो आप भी Hello, आइए. good evening, everybody. Yeah, hi, Dr. Anju. Good evening, good evening. Actually, I'm Welcome just and out of- happy Teachers' Day. A very happy Happy Teachers Day Teachers' to all of Day. you. I was listening to you. I was working in the OT and I was listening to your webinar. It was wonderful. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I think हम सब अगर जुड़ जाएंगे तो हमारे adolescents के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे. So many messages हमारी country के लिए has been given to the adolescents by Pratima Yes. ma'am and so many others, and Yes, Achula Batra yes. ma'am. Thank you, I Anju. don't think there's much Yes. left for me to speak. Thank you. Thank you, Doctor. Okay. But one thing is sure, that we should take Yes. our children into confidence. Yeah, yeah. That is So a very thank you so important. much for being with us and Thank you. yes. बिल्कुल बिल्कुल तभी तो इसको कहते हैं adolescent health friendly services, AHFS, adolescent health friendly services. जब फ्रेंडशिप है तो देखो डॉक्टर अंजू आप भी आ गए. फ्रेंडशिप के तो बहुत फायदे हैं ना, तो बच्चों के साथ भी हमें फ्रेंडशिप ही करनी है, क्योंकि वो कई बार मुझे लगता है डर जाते हैं हमारे से. उनको लगता है शायद हमें इनको नहीं ये बात बतानी, ये हमारे से आएंगे. एक पुरानी कहावत है ना कि जब बेटे का पाव बाप के जूते में आ जाए तो वो फ्रेंड हो जाता है. यस, तो still holds फ्रेंडशिप good. जो है या एब्सोल्युटली, तो फ्रेंडली वे में तभी हम एडोलेसेंट हेल्थ को एक फ्रेंडली सर्विसेज का नाम दे दिया गया है और इसके तहत हम लोग काफी आगे बढ़ सकेंगे. और आज डॉक्टर अचला ने भी बोला कि हमने अब इस तरह के कंटिन्यूएशन में प्रोग्राम्स करने हैं. आज सबसे बड़े हमारे देश के लोग जुड़े हुए हैं. डॉक्टर प्रतिमा जो एडोलेसेंट हेल्थ का आई थिंक शी इज वन ऑफ द पायोनियर्स. सो पीपल लाइक हर आर हियर. तो हमें अब कोई डर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं, तो हम दिल्ली में बैठे सारे काम कर लेंगे. तो जाते जाते मैं कबीर जी का एक दोहा बोलना चाहूंगी अपने टीचर्स डे पे, फॉर ऑल आवर टीचर्स एंड स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर स्टूडेंट्स हियर, कि कबीर संगति साधु की निष्फल कभी ना होए. और यहाँ पे साधु हैं हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक गण, आप सब. कबीर संगति साधु की निष्फल कभी ना होए, ऐसी चंदन वासना नीम ना कहसी कोय. कहते हैं ना कि संतों रूपी जो हमारे ये टीचर हैं, इनकी संगत कभी निष्फल नहीं होती. तो ये एडोलेसेंट वाले जितने भी हमारे बच्चे सुन रहे हैं, जितने भी किशोर हैं आज वो जो सुन रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है कि अगर आपकी आज जो टीचर्स हैं इनकी अगर संगति आप करोगे, तो जैसे कि इन्होंने आपको I think we should say thank you. सॉरी आज इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो वही कह रही हूँ कि संतों रूपी जो हमारे टीचर हैं, इनकी जो संगत है कभी भी निष्फल नहीं होगी. Can you all hear me? आवाज सुन रही है? हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you. We can hear. आपको We मेरी can hear. आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can hear. Yes, ma'am. बार बार इंटरनेट खराब हो रहा है. जैसे मल्यगिरी की सुगंध उड़कर लगने से नीम भी चंदन हो जाता है, ऐसे ही हमारे ये टीचर्स के साथ अगर हमारे बच्चे रहेंगे, उनसे अपना ज्ञान लेंगे, कहीं कभी डरेंगे नहीं, जहां भी डाउट होगा उनसे पूछ लेंगे, तो उनको कोई जिंदगी में परेशानी आने ही नहीं वाली है. सो विद दैट आई थिंक वी विल लाइक टू एंड इट हियर. और अगर किसी और भी हमारे पैनलिस्ट को कुछ कहना है
तो जरूर कहें, अदरवाइज फिर हम मिस्टर शिवम जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है, आईटी से हैं और हमारे साथ ही लगातार रहे हैं, इतनी परेशानियों के बीच भी हमारा स्मूथ प्रोग्राम करवा रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और आप सभी टीचर्स को, हमारी डॉक्टर प्रतिमा मित्तल मैम को, डॉक्टर अचला बत्रा, डॉक्टर सुजाता दास, मिस सोमी हमारे साथ पहले भी कई कामों में आई हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का हमने बहुत बड़ा अवेयरनेस वॉकाथॉन किया था, आप तब भी आई थी बहुत सारी नर्सेस को लेके। और रेनू जी जो लास्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग वाले फोरम में भी थी, और डॉक्टर मंजू बेचारी आज इतनी बिजी होने के बावजूद भी हमारे साथ आ गई हैं। और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, and also to our Dr. Girish Mane, who is the chairperson of Adolescent Health Committee of FOXY, और of course हमारी president FOXY Dr. Shanta, जिन्होंने ये कार्य को देने का नेतृत्व लिया. So thank you to all of you. So with this, thank you Anita for bearing the torch. You know, you're always ready to do whatever activity is planned. You know, always the first one to organize it and do it so well. Thank you very much. Thank you, Anita. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you, Anita ma'am, for organizing us and giving us opportunity and to be together. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for Thank you very for much. such a wonderful, for organizing such a wonderful talk, and thank you everyone. Thank you very much, Anita ma'am. Can you hear me? Yes. Yes, thank you very much, ma'am, for organizing such a beautiful and wonderful webinar for all of us, for all the adolescents. And it is very, very important to understand that this is a phase of transition. There are changes, physical changes, mental changes, and behavioral changes, but we have to tackle their energy as well as channelize it. That's all I want to say. Thank you very much. Thank you, everyone. And Anita is the Pied Piper. because our president is so friendly, Dr. actually friendly हैं कि हम कभी डरते ही नहीं. हाँ, तो बार-बार नेट भी जा रहा है, but still we have all cooperated with each other. Thank you so much, Dr. Achla. You are really a great teacher as well as a great friend. So again, wish you a very, very happy Teachers' Day, and I wish you have a roaring success in our AOGG during your tenure. Thank you so much. Everybody is everybody's teacher. Everybody is everybody's teacher. Yeah. We learn from each other. Yes. So happy Teachers' Day to everyone. Thank you. Thank you, Shivam also. Thank you, Shivam. Progress. Thank you. Thank you, ma'am.